Assalamu alaikum students. Today is Monday, April 12, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the physics class with a new lesson. Hope you all are doing fine at home. So students, in the previous class, in the previous lecture, we discussed about two topics that were prefixes and then we studied about scientific notation. So in the previous lecture, I used whiteboard to give you the clear insight of these two topics. But our today's topics are theory based, so we do not need any whiteboard. So you have to follow this video and while opening your books with you. So whenever you're streaming these kind of videos, you have your book in front of you. Okay, so that you might be clearly looking at your book to have better understanding of this topic. So moving on, our today's topic is topic number 1.6, that is measuring instruments. So in this chapter is named as physical quantities and measurements. In the previous section of this chapter, up to 1.5, we discussed about physical quantities. Okay, starting from that, we have divided physical quantities into two main classes, that were base quantities, derived quantities. Later we discussed about units. We said there are two kinds of units, that are base units and derived units. After that we moved on to the prefixes, that are the words or letters that we fix before any unit. एंड वी हमने क्या कहा कि वो क्या होती हैं प्रीफिक्सेस, दे आर द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ दैट यूनिट. ओके, सो उसके बाद हमने क्या देखा, साइंटिफिक नोटेशन. हमने क्या कहा कि अगर हम किसी नंबर को, न्यूमेरिकल वैल्यू को इन द पावर्स ऑफ 10 लिखें मल्टीप्लाइड विद द नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जिस फॉर्म में, दैट फॉर्म विल बी नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन. So in today's section, from now on, we are going to discuss about measurements. Okay, so measurements mean to measure something. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने measure करना है. ठीक है, तो obviously हमें कोई चीज़ अगर measure करनी है तो उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस चाहिए होगी to measure that. Okay, so today we are going to discuss what are the basic and preliminary instruments, okay, that were used to take measurement of some physical quantities. ठीक है, so in this unit we will discuss about three kind of measuring instruments, 3 to 4. That the first one section will comprise of the length measuring, कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से हम लेंथ्स मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं. in the second section we will discuss about time measuring instruments, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से हम क्या मेजर कर सकेंगे, टाइम फाइंड कर सकेंगे, यानी स्टॉप वॉचेस. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम कैसे मैस फाइंड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का. ठीक है, मैस या वेट्स फाइंड करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो अगर हमारे पास कोई लिक्विड होगा तो हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, we will discuss all of them in details. So moving on to our topic, that are measuring instruments. So measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time and volume, etc. So measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. For example, sundial, water clock and other time measuring devices used around 1300 AD. AD stands for ancient decade. Were quite crude. On the other hand, digital clocks and watches used nowadays are highly reliable and accurate. Here we shall describe some measuring instruments used in physical laboratories. ठीक है, सो फिजिक्स लेबॉर्ट्री के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं मेनली, हम उनको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. तो यहाँ पे ऑथर ये कहता है कि जो प्रीवियसली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, सबसे पहले तो जब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो उस वक्त बार्टर सिस्टम होता था कि एक चीज़ के बदले चीज़ दे देना. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी से कोई, लेट्स से कि आपने किसी से मिल्क लिया है इन अ कप और अ ग्लास,
तो आपने जब उसको वापस करना है तो आपने उसको ना, अब ड्रॉप्स ऑफ मिल्क को तो काउंट नहीं कर सकते, तो आपने उसको उसी कप के अंदर फिल करके देना है। अब ये नॉट श्योर कि जो उससे लिया आपने तो वो प्रॉपर फिल था या नहीं था, तो देयर वर नो एक्यूरेसी फॉर दैट। ओके, सो इन टूडेज measuring instruments, we are moving towards accuracy and precision. So we will discuss them in detail about what is accuracy and what is precision. So accuracy is basically, अगर हम basic idea दूँ मैं आपको accuracy क्या होती है, तो आप एक original value, एक standard value के साथ कितने accurate हैं, कितने उसके close हैं, that is known as accuracy. And what is precision? Precision ये होती है कि for example आपने 3-4 measurements ले ली हैं, सो वो आपस में मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, दैट इज नोन एज प्रिसिजन. ओके, वी विल डिस्कस देम इन डिटेल लेटर. सो आवर फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मीटर रूल. सो मीटर रूल किस लिए यूज होता है, आपने देखा भी होगा, आपने यूज भी किया होगा, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है, मीटर रूल, स्केल जिसको बोलते हैं, ठीक है. सो मीटर रूल क्या होता है कि लेंथ मेजर करता है, किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई या उसकी हाइट मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, मीटर रूल. ओके, सो क्या होता है जी, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, सो 100 सेंटीमीटर, सेंटी स्टैंड्स फॉर 10⁻². 10⁻² को अगर मैं लिखूं तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻² हो जाएगा. सो 10⁻² इज 10 × 10, that is 100. So 100 centimeter will be equals to 100 divided by 100 meters. So 100 over 100 will give us 1. So therefore 100 centimeter is equals to 1 meter. Okay. So या तो स्केल को हम ये कहेंगे कि या तो ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ हम किससे मेजर कर सकते हैं, यूजिंग द मीटर रूल. So each centimeter is divided into 10 smaller divisions called millimeters. Okay, thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. ठीक है, least कहते हैं जो कम से कम तक, ठीक है, least से नीचे कुछ भी नहीं होता. ओके, सो कहता है कि ये जो मीटर रूल है लेंथ मेजरिंग के लिए यूज़ होता है. इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है जी, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर. और मिनिमम लेंथ क्या होती है जी, इसने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर को भी अगर 10 डिवीजन में डिवाइड करो तो इतनी मिनिमम उसकी लेंथ मेजर कर सकता है, और दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर. ओके, सो इस 1 मिलीमीटर ऑफ द लेंथ को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ नाउन एज इट्स लीस्ट काउंट. सो लीस्ट काउंट एक डेफिनेशन है यहाँ पे. सो लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग that can be taken using a measuring instrument. It is not merely the meter rule. कोई और इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं उससे भी जो आप स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हैं, that is known as its क्या कहेंगे हम उसे, लीस्ट काउंट. ओके, जो सबसे कम वैल्यू आप ये मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए ले सकते हैं, दैट इज़ इट्स लीस्ट काउंट. सो एक मीटर रूल की मदद से हम कितनी सबसे छोटी कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं, दैट इज़ 1 मिलीमीटर. सो देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल. सो कहता है व्हाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन फिगर. तो ये आप देखें कि ये जो जहाँ पे आप रीडिंग ले रहे हैं आपकी आई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दैट, बिल्कुल उसके अबव रख के आप उसे रीडिंग लेंगे तो एक्यूरेट रीडिंग आएगी. द रीडिंग बिकम्स डाउटफुल इफ द आई इज पोजीशन आइदर लेफ्ट और राइट. तो अगर आप अपनी आई को उस पोजीशन से लेफ्ट या राइट पे रख के उसकी रीडिंग लेने चाहेंगे तो दैट रीडिंग विल बी डाउटफुल. ओके, द नेक्स्ट इज द मेजरिंग टेप. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. मीटर रूल को हमने क्या कहा, वो 1 मीटर होता है. तो इट कैन बी 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर और इवन मोर. इससे भी बड़े बड़े आपके पास क्या आते हैं, मेजरिंग टेप्स है. तो दिस मीन्स कि हम बड़ी से बड़ी लेंथ्स को भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग द मेजरिंग टेप. ओके, और इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या ये ले सकता है, दैट इज़ कहता है मेजरिंग टेप्स ऑफ मार्क इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन द इंचेस. ओके, सो द स्मॉलेस्ट रीडिंग जो ये ले सकता है that is equals to 1 centimeter, 1 millimeter, just like the meter rule, because they both are the length measuring instruments. So moving on, our next instrument is vernier caliper.
अभी तक तो हमने ये देखा कि हम बड़ी से बड़ी मेजरमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। आप क्या कहते हैं, मेजरिंग टेप से हम बड़ी से बड़ी लेंस को मेजर कर सकते हैं। जबकि हमने क्या कहा कि सबसे छोटी जो मेजरमेंट ले सकते हैं हम मीटर रूल से या मेजरिंग टेप से, दैट इज़ 1 मिलीमीटर ओनली। तो अगर 1 मिलीमीटर से भी छोटी थिकनेस की कोई चीज़ आ जाए आपके पास, तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे? तो क्वेश्चन ये रेज हुआ, साइंटिस्ट के भी जहन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर उससे भी छोटी कोई चीज़ आ, फॉर एग्जांपल आपका जो हेयर है, ह्यूमन हेयर, इसकी थिकनेस तो 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम है। इस तरह जो वायर्स होती हैं, कंडक्टर्स, उनके अंदर जो आपके पास लोहे का जो कंडक्टर लगा होता है, कॉपर कंडक्टर होता है, ठीक है। सो उसकी अगर हम थिकनेस फाइंड करें तो उसके लिए तो फिर हमें ये इंस्ट्रूमेंट हमारे फेल हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि साइंस कहीं पे फेल हो जाए। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने एक और इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, दैट इज़ नोन एज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का क्या एडवांटेज है कि हमने ये कहा कि हमारा जो मीटर रूल था वो कितनी मेजरमेंट्स ले सकता था, मिनिमम 1 मिलीमीटर। अब हमने क्या कहा कि हम उस मिलीमीटर को भी मजीद अगर 10 डिवीजन्स में डिवाइड करें तो वो हमारे पास कितनी मेजरमेंट ले सकता है, 1/10, दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। तो अब जो हमारे पास ये जो नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है और इसको हमने नाम दे दिया वर्नियर कैलिपर। ओके, सो अब हम जो छोटी मेजरमेंट्स हैं उनको भी एक्यूरेटली, छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ह्यूमन हेयर हैं, आपके पास कॉपर वायर्स हैं, उनका अगर हम थिकनेस या उनकी लेंथ फाइंड करना चाहें, डायमीटर फाइंड करना चाहें, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स गो थ्रू अबाउट इट्स कि व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि किस कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, इसका जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं दे आर अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, कि ये कैसे बना है। So the accuracy obtained in measuring instruments in a meter rule is up to 1 millimeter. However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments, such as a vernier calipers. A vernier caliper consists of 2 jaws. इसके 2 jaws होते हैं, जैसे हमारा माउथ होता है ना, इसके 2 jaws होते हैं। jaws कहते हैं जबड़ा, ठीक है। तो अपर टीथ, अपर जा, लोअर जा होता है। तो इसी तरह इसके भी 2 जाज होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है मूवेबल। जैसे ह्यूमन अगर माउथ को भी देख लें तो साइंटिस्ट ने देखें कैसे डेवलप किया ये चीज़, कि उनने ह्यूमन के माउथ के स्ट्रक्चर को देखते हुए उनने 2 जाज डेवलप कर दिए, एक उनने फिक्स रख दिया और एक को मूव करा दिया। जैसे हमारा जो चिन वाला जा होता है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है, जबकि जो हमारा अपर जा है वो फिक्स्ड है हमारे हेड के साथ। ठीक है, सो इसी तरह ये 2 जाज के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर जा एंड इनर जा, द फिक्स्ड जाज। ओके, so one is fixed jaw with main scale attached to it. Main scale has centimeter and millimeter marks on it. So main scale को आप ये समझें कि ये आपका जो स्केल है, नॉर्मल जो आप स्केल यूज़ करते हैं टू ड्रा मार्जिन्स और ड्रा एनी ज्योमेट्रिक शेप्स ऑन योर नोटबुक्स। सो ठीक है, सो तो बेसिकली आपके पास ये वो वाला स्केल था। उस स्केल को हमने मज़ीद 10 डिवीजन्स डिवाइड कर दिया और उसके साथ एक और स्केल ऐड कर लिया, दैट इज़ नोन एज वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये जो एक जा है इसका वो फिक्स्ड है विद ये जो मीटर रूल लगा हुआ है। ठीक है, ये जो स्केल लगा हुआ है इसके साथ फिक्स्ड है और इस स्केल को मेन स्केल बोलते हैं। द अदर जा इज मूवेबल, वो क्या है, मूव कर रहा है। तो इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे व्हेन यू विल बी अवेलेबल फॉर द फिजिकल क्लासेस। सो जब आप फिजिकल क्लासेस के लिए आएंगे तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह वर्नियर कैलिपर के ऊपर और स्क्रू गेज, एक और इंस्ट्रूमेंट इसके बाद हम पढ़ेंगे। इन दोनों को हम लैब के अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि so that you guys would understand this topic in a better sense. So main scale has centimeter and millimeter marks on it. ठीक है, द अदर जा इज मूवेबल, जो दूसरा जा होता है वो क्या है, मूवेबल है, उसके साथ एक स्केल अटैच्ड है। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं दैट इज नोन एज वर्नियर स्केल। ठीक है, या मूवेबल स्केल उसको बोलते हैं। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। देखें हमने क्या कहा कि एक डिवीजन को हमने मज़ीद कितनी डिवीजन में डिवाइड कर दिया, 1 मिलीमीटर को हमने मज़ीद 10 मिलीमीटर में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब जो लीस्ट मेजरमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से हम ले सकते थे दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। So it is called least count of the vernier calipers. So least count, remember that least count हर इंस्ट्रूमेंट का होगा। वो क्या होता है, the smallest reading that can be taken using a measuring instrument. तो एक measuring instrument से जो सबसे छोटी measurement आप ले सकते हो that is known as its least count। ठीक है,
सो लीस्ट काउंट का फार्मूला है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का एक और नाम है, इसे कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन द वर्नियर स्केल। तो हमने क्या कहा, मेन स्केल हमारे पास वही मीटर रूल है, तो मीटर रूल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग हम कितनी ले सकते थे, 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन हम वर्नियर स्केल हमने क्या कहा कि उस 1 मीटर को हमने 1 मिलीमीटर को हमने मजीद 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। तो नीचे हमने वो लिखनी है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, सो दैट वाज 10 डिवीजन। सो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट। और अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना चाहें तो मिली इज 10⁻³ एंड सेंटी इज 10⁻²। दिस मीन्स कि मिलीमीटर के लिए हमें मजीद सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। सो वी विल go into 0.01 centimeter. Okay, now we are going to discuss the working of वर्नियर कैलिपर। तो इस वर्नियर कैलिपर से हम वर्किंग कैसे ले सकते हैं, तो कहता है कि वर्किंग से पहले एक और चीज़ फाइंड करते हैं, दैट इज नोन एज जीरो एरर। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो जीरो एरर क्या चीज़ होती है, जीरो एरर ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा, दैट कैन बी अ मीटर रूल, दैट कैन बी वर्नियर कैलिपर, दैट कैन बी मेजरिंग टेप। तो उसके अंदर जो जब उसको बनाया जा रहा है टू एज अ टूल के तौर पे, तो उस वक्त उसको बनाते हुए उसके अंदर जो एरर आ जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, दैट इज़ नोन एज जीरो एरर। तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्केल होता है उसके ऊपर जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे कि उसका जो जीरो है वो प्रॉपरली स्टार्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा स्केल के, वो थोड़ा सा आगे प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दिस मीन्स कि आप अब उस स्केल के अंदर क्या आ गया, आपके पास एरर आ गया, प्रॉपर वो स्केल नहीं है। उसका जीरो बिल्कुल एक एज से स्टार्ट होना चाहिए ना, ऐसा ही है, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द जीरो एरर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब भी बनाए जाते हैं तो इनके अंदर जीरो एरर कहीं ना कहीं से काज हो जाता है। तो हमारी जब साइंटिस्ट इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, इंजीनियर इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर ना हो। अगर ज़ीरो एरर होगा तो आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। ओके, सो जब भी आपके पास को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा तो पहला टास्क हमारा क्या है कि हमने उसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है। तो ताकि हम उस ज़ीरो एरर अगर उसमें है तो उसको हम करेक्ट कर सकें। उसको करेक्ट कैसे करेंगे, पहले हम ये देखेंगे ज़ीरो एरर कैसे फाइंड किया जाता है ऑफ द वर्नियर कैलिपर। सो दैट इज़ ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। कहता है टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जॉज। कहता है कि वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को आपस में क्लोज कर दो। कहता है इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with the zero of the main scale then the zero error is zero। तो कहता है ये आपके पास ये एक बड़ा स्केल नीचे फिगर ए के अंदर अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक मेन स्केल आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर 0, 1, 2 वो एक स्केल जा रहा है आगे, उसने प्रिंट से आउट हो गया। ठीक, जबकि दूसरा स्केल कौन सा है, ये जो सर्कुलर शेप में बना हुआ है आपके पास, रेक्टेंगुलर शेप में, सो जिसके ऊपर 0, 5 और 10 लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि अगर ये ज़ीरो लाइन ऑफ द ये स्मॉलर स्केल यानी हमारे पास जो मूवेबल स्केल है इसका ज़ीरो लाइन और जो मेन स्केल है आपके पास जिसके ऊपर 0, 1, 2 लिखा हुआ है, इन दोनों की ज़ीरो वाली लाइंस अगर ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं, देन इसका हम क्या कहेंगे कि इस हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ये मैच नहीं करती तो ज़ीरो एरर होगा, अगर नहीं करती तो दो तरह के ज़ीरो एरर होंगे, एक को हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं और एक को नेगेटिव ज़ीरो एरर। वो क्या होते हैं अभी हम उसको देखने जा रहे हैं। कहता है जीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। कोइंसाइडिंग किसको बोलते हैं, टिप टू टिप किसी चीज़ का मिला होना एक दूसरे के साथ। ठीक है, कि जस्ट लाइक आप अपनी फिंगर को दूसरी फिंगर के साथ मिलाएं तो सच दैट कि वो प्रॉपर टिप टू टिप आपके नेल टू नेल मिले हों, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। ओके, अगर कोइंसाइड नहीं करते तो हम क्या कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, आपके पास जीरो एरर है। सो जीरो एरर will be positive if zero line of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale। तो आपके पास मेन स्केल तो हमारे पास हमने क्या कहा फिक्स्ड होगा, मूवेबल कौन सा होगा, ये वर्नियर स्केल इसके ऊपर 0, 5, 10 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसी फिगर में नीचे बी पे आएँ, ऊपर ए को और बी को आपस में कंपेयर करके देखें, ए में क्या है जीरो, दोनों जीरो लाइंस आपस में मैच कर रही हैं, जबकि बी के अंदर आप देखें तो जो जीरो लाइन है वर्नियर स्केल की, यानी ये जो मूवेबल स्केल है स्मॉलर स्केल, इसकी जो जीरो लाइन है
वो आपके मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के राइट साइड पे लाई करती है। तो इस तरह के ज़ीरो एरर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब हम इसका नेगेटिव ज़ीरो एरर वाला केस देखेंगे। उसमें ये देखें, ये ज़ीरो लाइन और ये ज़ीरो लाइन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही हैं। क्या है? जो आपकी नीचे वाली ज़ीरो लाइन है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। सो देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब हम ये ज़ीरो एरर फाइंड कैसे करते हैं? तो हम ये कहते हैं कि whenever there is a case of these kind of slightly मिस कोइंसाइडिंग या अगर नॉन कोइंसाइडिंग वाला केस हो, ज़ीरो लाइन जहाँ पे कोइंसाइड ना कर रही हो, तो उसमें हम पहले ये देखेंगे कि वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे। ठीक, ये हमने देख लिया। अगर वो राइट साइड पे होगी मेन स्केल का ज़ीरो लाइन, तो हम ऐसे कहेंगे कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो वो क्या होगी? नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे कितना ज़ीरो एरर है? ठीक है, अभी तो हमने ये देखा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम उसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसका ये तरीका होता है कि जब हम देखेंगे कि ज़ीरो लाइन्स आपस में मैच नहीं कर रही, तो कोई एक लाइन जो होगी वो ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही होगी। तो अगर आप फिगर बी के अंदर ऊपर देखें तो ज़ीरो वाली लाइन तो ज़ीरो से बहुत आगे आ गई, वन वाली भी आगे आ गई, टू वाली भी, थ्री वाली, फोर वाली, फाइव वाली भी आगे है। सिक्स वाली लाइन को देखें तो वो भी उससे आगे है। सेवन्थ लाइन को देखें तो एग्जैक्टली सेवन्थ लाइन नीचे वाले स्केल की मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो ज़ीरो से फाइव की तरफ जा रहा है। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, देन सिक्स, सेवन, एट, नाइन और फिर 10 आता है। तो अगर आप इसको देखें, किसी और लाइन को देखें तो कोई भी मैच एग्जैक्टली नहीं कर रही एक्सेप्ट सेवन्थ लाइन जो है, ठीक है, ये 5, 6 के बाद जो सेवन्थ जिसके ऊपर उसने येलो मार्किंग की हुई है ऊपर से, तो वो कह रहा है ज़ीरो एरर इज 7। तो ज़ीरो एरर फाइंड कैसे करेंगे? जो लाइन डिवीजन जो मैच कर रही है, फॉर एग्जांपल सेवन्थ मैच कर रही है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो पीछे हमने लीस्ट काउंट मेजर किया था, वो कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। सो 0.01 सेंटीमीटर को इस डिवीजन यानी नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास ज़ीरो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो हम उसके साथ प्लस लिखेंगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ठीक है, so in this way we can find the zero error of a measuring instrument of a vernier caliper। और इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? जब हम इसके साथ क्या करेंगे? ज़ीरो करेक्शन कैसे होगी? अगर आप पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो आखिर पे हम जब रीडिंग ले लेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमन हेयर जो है या फॉर एग्जांपल पेंसिल का जो सिक्का होता है उसकी अगर मैंने थिकनेस फाइंड करनी है तो मैं कुछ थिकनेस लूँगा। लेट्स से मेरे पास आ गया जी दैट इज़ कि 0.4 मिलीमीटर। ठीक, अब उसके अंदर मैंने ज़ीरो एरर को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है? मैंने इसको ऐसे ऐड करना है कि अगर वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो वो 0.04 में से ये माइनस हो जाएगा, यानी 0.04 माइनस 0.07 सेंटीमीटर। तो जो माइनस करके आंसर आएगा मेरे पास, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी थिकनेस आ जाएगी। ठीक, और अगर आपके पास क्या होगा? ज़ीरो एरर नेगेटिव होता तो हम क्या करते? जो आंसर आया था फॉर एग्जांपल 0.04 सेंटीमीटर, उसमें इस वैल्यू को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, सो इस तरह हम इस ज़ीरो एरर को रिमूव करते हैं। तो नाउ मूविंग ऑन कि अगर हम रीडिंग कैसे लेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, तो जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक उसने सफ़ियर, एक सिलेंडर जो है वो प्लेस किया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इसके जाज़ को ओपन करना है। ओपन करके जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी थिकनेस आपने लेंथ फाइंड करनी है उसको इस जाज़ के अंदर प्लेस करेंगे और इसको फर्मली यानी जेंटली इन जाज़ को क्लोज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्रॉपरली फिक्स हो जाए। ठीक है, ताकि वो फंस जाए, वहाँ से वो ड्रॉप ना हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर स्क्रू लगा होता है जिसकी मदद से हम ये जो मूवेबल स्केल है इसको टाइट कर देते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट वहाँ से गिरे ना। अगर वो गिर भी जाए तो वो हमारा जो उसकी हमने जो मेजरमेंट लेनी है वो फिक्स्ड रहे। ओके, सो इसके बाद क्या होता है, आपने सबसे पहले मेन स्केल के ऊपर आपने रीडिंग लेनी है कि मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है। तो उसके लिए हमने क्या देखना होता है कि ये जो मूवेबल स्केल है इससे पीछे मेन स्केल की कितनी लाइंस आपके पास नज़र आ रही हैं। तो अगर हम इस फिगर के अंदर देखें क्लोजली, अगर हम इसको क्लोजली देखने की कोशिश करें तो आप ये काउंट करें 0, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कितनी लाइंस नज़र आ रही हैं? 1, 2, 3, 4। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1.4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, जो मेन स्केल की है। अब हमने इसमें वर्नियर स्केल को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अब ये देखना है कि ये वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन, कौन सी लाइन जो है वो मैच कर रही है हमारे मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ। तो अगर हम इसको क्लोजली
देखें, सो 0 वाली नहीं मैच कर रही, 1 वाली, 2 वाली, 3। जो थर्ड लाइन है अगर आप देखें तो वो ऊपर वाले मेन स्केल की जो देखें जो सबसे लंबी लाइन है उसके साथ मैच कर रही है। सो देयरफॉर हम ये क्या कहेंगे कि थर्ड लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल जो है वो मैच कर रही है मेन स्केल की एक लाइन के साथ। तो देयरफॉर इस थर्ड लाइन को यानी 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करेंगे, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 0.03 सेंटीमीटर। इनिशियली हमने क्या रीडिंग ली थी, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। सो 1.4 के अंदर अब हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस वैल्यू को हमने इसमें ऐड करना है, तो रिजल्टेंटली जो हमारे पास आंसर बन जाएगा वो इनिशियली 1.4 सेंटीमीटर था, तो अब उसके अंदर हम 0.03 सेंटीमीटर को भी ऐड करें तो क्या आंसर आएगा 1.43 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ आ गई। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जीरो एरर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है तो हमने ज़ीरो एरर को कंसीडर करना है, यानी अगर वो पॉजिटिव होगा तो 1.43 सेंटीमीटर में से उसको माइनस कर लेंगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं था, तो हमारा फाइनल आंसर यानी इस सिलेंडर की जो थिकनेस, जो लेंथ आएगी वो हमारे पास क्या होगी, 1.43 सेंटीमीटर। So in this way we can take the reading using a vernier caliper. That's all from today's lecture. You have to go through this topic very deeply so that you can understand its concepts. It is important to understand. If you guys do not understand, inshallah we will discuss this in the physical classes as well, because these two topics are very important. After that we will study screw gauge, so they both are practical based. फिजिक्स में आपके जो पहले दो प्रैक्टिकल हैं वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे हैं। अगर आपको समझ नहीं आते सो आपने इसको बिल्कुल जहन के ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना इसकी वजह से। इट्स क्वाइट सिंपल। जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप उसको बेहतर समझ सकते हैं, बुक्स के ऊपर शायद आप इसको प्रॉपरली समझ ना सकें। इंशाल्लाह इन फिजिकल क्लासेस वी विल डिस्कस it through a practical example. Okay, so thank you for joining. Allah Hafiz.